السلام علیکم ورحمت الله. ګران ورونو، تقدیر یو ډیره پیچیده مسله ده او په دې باندې عام عوام نه پوهیږي او اکثر چې کوم د اسلام دشمنان کوم کافران ملحدین هغه هم په دې مسله باندې ډیر اعتراض کوي. هغه داسې چې یو ګناه زما په تقدیر کې الله لیکلی ده او هغه ما وکړ، نو په دې کې خو زما څه غلطي نشته، دا خو الریډي زما په تقدیر کې لیکل شوی وه. نو دې متعلق یو هغه اول د مفتی منیر شاکر صاحب دی، دا واورئ او د هغې نه بعد د ډاکټر ذاکر نایک صاحب یو بیان دی او دا تاسو ټول په ځان باندې لازم کوي، تر اخره پورې لازم واورئ. انشاءالله العزیز دا ویډیو به د ډېرو خلکو هدایت سبب وګرځي او ډېرو خلکو له چې کوم شکوک او شبهات راځي په ذهن کې د تقدیر متعلق، دا ټول به په هغې کې حل شي. خو دا ویډیو بیا در لویم چې د اصلاح په نیت وګورئ، د چا خلاف یا د چا په رد په نیت باندې مه ګورئ، بلکې د اصلاح په نیت باندې وګورئ. انشاءالله العزیز دا به ډېرو خلکو له فایده ورکړي. ګوره موږ د تقدیر قایل نه یو. تاسو ته موږ ویلي دي چې تقدیر په نامه ملایان څه وایي، دا دروغ وایي. خدای دا لیکلي دي، دته به یې مرګ لیکلی و، دا یې د لاسه لیکلی چې الله د ده د لاسه لیکلی و، بیا ما پې ولې وهي؟ الله داسې کوي؟ دته به یې زنا لیکلی وه، دته یې قطع یاره دا خو هر څه لیکلي شوي دي، هر څه چې لیکلي شوي دي بیا ما جهنم ته ولې اچوي؟ یو د الله علم دی او یو تقدیر دی. تقدیر په نامه چې څه دي، دا دروغ ملایانو ویلي دي. دا یې دې دپاره ویلي دي چې خلق محنت پرېږدي، چې وایي چې هر څه لیکلي شوي دي، محنت څه لکوي؟ هېڅ شی نه دي لیکلي شوي. یاد ساته، ستا عمل ته اختیارمند دی، که جنت ګټې هم ګټلی شي، که جهنم ګټې هم ګټلی شي، که غیرت کوې هم کولی شي، که بېغیرتي کوې. خدای پاک تا ته هېڅ لیکلي او هغه ته پته ده چې ته کم نمونه شی یې، هغه علم د الله ځان لري. نو دا عالم امر او عالم خلق. عالم خلق ته چې کله انسان راغلی دی، نو انسان دومره خود مختاره دی لکه څنګه چې الله تعالی العیاذ بالله په تمام کائنات کې خود مختاره دی. انسان ته یې ویلي دي چې ستا اختیار، بس ته داسې ځان وګڼه العیاذ بالله چې که ته د خدای دعوه کوې هم په تا پابندي نشته. بیا به هلته ګورو که ته ګستاخیانې کوي، که ته کفرونه کوي، که ته رسالت کوي، که ته خباثت کوي، که ته دروغ وایي، هلته به ګورو. دلته ستا مرضي، اعملوا ما شئتم، څه مو چې خوښوي هغه کوئ. دې ته ویلی شي خود مختاري. دغې خود مختارۍ په وجه باندې انسان هلته رانیسي. که دلته خود مختاري نه وی، هلته د نیولو حق الله بیا په موږ نه لري. اوس وایي وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. خلک معنی څه کوي؟ تاسو نشئ خوښولی مګر هغه څه به خوښوئ چې د الله خوښ وي. نو بیا اعملوا ما شئتم څه معنی شو؟ دلته راته وایي چې ستا څه خوښوي کوه. بل ځای کې الله وایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. که ستاسو خوښوي مؤمنان شئ، که خوښوي کافران شئ. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. مرضی مو د خپله. दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है. तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है. आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है. आई होप आई एम राइट सर. करेक्ट. तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर. जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है. अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का. अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं, ये अल्लाह को पता है. ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था. अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल. लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं माशाल्लाह. काफी देखता हूँ सर. आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे. मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है मैच करने का, कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं. और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ. थैंक यू सर. आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है. सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का. दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना पक्का है. अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर. बहुत अच्छा सवाल. ये दूसरा सवाल है मेरा. और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर. शॉर्ट है, शॉर्ट ये. नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं. नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है. और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं. आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते. सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा. लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है,
एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं, ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते तीनों हैं। जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है, जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा, इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत का दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं, हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते, ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान है। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और, या 200 रुपया और, 600 रुपया और, 5500 में 10 लोग देख सकते हैं। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया, 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है, 5000 रुपया खर्चा करो, 1000 रुपया वायरिंग के लिए, 6000 में 10-15 लोग देख सकते हैं, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे, दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का।
लाइव टेलीकास्ट और डिफिकल्ट है। पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरखास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो। कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मजहब कबूल करने की हिदायत दे।